Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing the chapter Indian politics trends and developments. This chapter is not named like this. The last chapter is in your book. The name of the last chapter is recent development in Indian politics. उसी का ये नाम थोड़ा सा चेंज करके कर दिया गया, Indian politics trends and development. So in this chapter we are discussing Indian politics after 1989, and we have seen that some important and long-lasting developments took place during this time. First and the most important development of this period was the defeat of Congress party in the elections held in 1989. And in this election, Congress could win only 197 seats, है ना? And then we see that this was the end of the Congress system, because इसके बाद कभी भी कांग्रेस अकेले अपने दम पे अकेले वो पार्टी में कभी भी पावर में नहीं आ सकी. द सेकेंड डेवलपमेंट जो है वो था, इस समय में मंडल इशू राइज होता है नेशनल पॉलिटिक्स में, और ये जो मंडल इशू था इसने इसके कारण क्या हुआ कि ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ दिस द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट द recommendation of Mandal Commission. Okay, and the third development was the change in the economic policy. We adopted a new economic policy in the year 1991, which focused on globalization, liberalization and privatization. And the fourth development was that the demolition of the disputed structure at Ayodhya in December 1992. And the fifth development was the assassination of Rajiv Gandhi in May 1991, which caused change in the leadership of the Congress party, because now after this assassination of Rajiv Gandhi, we find that the leadership of the Congress party for the first time a person from non-Gandhi family becomes the leader of the Congress party and becomes the Prime Minister, that is P.V. Narasimha Rao. So these are the important developments which occurred after 1989. And we see that era of coalition also started, because in the election of 1989 no party was in a condition to form the government. So we see that this coalition era of coalition started at the national level from 1989 only. Okay, and the National Front, this is NF, National Front government was formed, as we discussed in the previous class also. It was an alliance. National Front was an alliance of Janata Dal and some other regional parties. So this National Front formed the government, but in this regard you must understand, we must know that National Front was also not having the majority of the seats. It has to get support from two political groups, that is the BJP and the Left Front. And now we will see that these two, the BJP and the Left Front, were diametrically opposite to each other. ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही अपोजिट थे. और नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट फॉर्म तो हो गई 1989 के इलेक्शन के बाद, लेकिन यहाँ पर बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट जो इनको सपोर्ट कर रहे थे, दे वर सपोर्टिंग फ्रॉम आउटसाइड, दे डिड नॉट ज्वाइन द गवर्नमेंट. ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि उस समय क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी जो थी वो तो एंड हो चुका था, उसका डिक्लाइन स्टार्ट हो चुका था. इंडियन पार्टी सिस्टम पे, इंडियन गवर्नमेंट पे जो डोमिनेंस था वो ख़त्म हो चुका था. और जैसे कि अगर हम कांग्रेस जिसकी कंडीशन 1967 के इलेक्शन में भी काफ़ी ख़राब हो गई थी, है ना, हमने देखा था 1962 तक का जो थर्ड जनरल इलेक्शन तक का टाइम था, बाय दैट टाइम कांग्रेस वाज डोमिनेंट, है ना. कांग्रेस हैज़ used to get 3/4 of the seats in the Lok Sabha, but after 1962 कुछ बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए जिसकी वजह से, जैसे नेहरू का डेथ होता है, फिर तुरंत
शास्त्री का भी डेथ हो जाता है। उसके पहले 62 में चाइना के साथ वॉर होता है, 65 में पाकिस्तान के साथ वॉर होता है, मानसून की फेलियर हो जाती है। इन सबसे 1960 का जो पूरा का पूरा दशक था वो काफ़ी ख़राब माना गया। और 1967 में जो इलेक्शन हुआ कांग्रेस का, वो कांग्रेस का इलेक्शन उसके लिए अर्थक्वेक था उसका रिजल्ट्स, बिकॉज बहुत सारे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे वो इलेक्शंस हार गए थे और कांग्रेस को सबसे कम वोट मिले थे। अगर पीछे के तीनों इलेक्शन से कंपेयर करें तो चौथे इलेक्शन में सबसे कम वोट मिले थे। तो ये था कि कांग्रेस की कंडीशन ख़राब हो गई थी। लेकिन फिर से इंदिरा गांधी की लीडरशिप में धीरे धीरे मतलब 70 जाते जाते कांग्रेस फिर से अपने डोमिनेंट पोजीशन में आ जाता है और कांग्रेस का रिवाइवल होता है। कांग्रेस फिर से कांग्रेस सिस्टम जो है वो रीस्टोर हो जाती है अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी, है ना। And now we are in 1989 where we see that there was challenge to the predominant position of the Congress, and on the one hand कांग्रेस की जो predominance थी वो ख़त्म हो रही थी और दूसरी तरफ कोई भी सिंगल पार्टी इमर्ज नहीं किया। कांग्रेस की जगह जो खाली हुई थी उस जगह को किसी अदर पार्टी ने भरा नहीं और इसका नतीजा ये हुआ कि मल्टी पार्टी सिस्टम की स्टार्टिंग हो जाती है। इट वाज नॉट अ बाई पार्टी सिस्टम, वी आर नॉट हैविंग कि दो ही पार्टी हैं, हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम स्टार्ट हो गई और लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो ज़्यादातर इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, है ना। एंड हमारी जो पार्लियामेंट है उसके पास रिप्रेजेंटेटिव है फ्रॉम सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज़। एंड 1989 के बाद क्या हुआ कि जो इतने सारे जो पार्टीज़ थे उसमें हम क्या देखते हैं कि दिस मल्टी पार्टी सिस्टम स्टार्ट हो जाती है। और इसमें ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक या दो ही पार्टीज़ हैं जिनको मोस्ट ऑफ द सीट्स मिल रहे हैं या मोस्ट ऑफ द वोट्स मिल रहे हैं, है ना। इस तरह का डेवलपमेंट नहीं होता है। 1989 के बाद जो डेवलपमेंट होता है वो ये होता है कि कोई भी सिंगल पार्टी क्लियर मेजॉरिटी नहीं जीत पाती है लोकसभा में। 1989 के इलेक्शन से अगर हम देखें तो ठीक है, 2014 तक के इलेक्शन का यही कंडीशन था, कोई भी सिंगल पार्टी मेजॉरिटी नहीं किसी को भी मिल पाता है। 2009 के इलेक्शन तक, 14 के इलेक्शन में मिल गया, 2009 के इलेक्शन तक, ये 20 ईयर्स का जो टाइम है इसमें यही देखते हैं कि मल्टी पार्टी सिस्टम पूरी तरह से काम कर रहा है, जहाँ पर कोई भी एक या दो पार्टी इस कंडीशन में नहीं है कि जिनको उन्हीं को हमेशा सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं थी। और इसी से एक एरा ऑफ कोalition गवर्नमेंट की स्टार्टिंग होती है सेंट्रल लेवल पे, जिसमें कि रीजनल पार्टीज़ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जैसे पहले के समय को अगर हम देखें, 89 के पहले के समय को देखें तो रीजनल पार्टीज़ का कोई इंपॉर्टेंस नहीं था नेशनल पॉलिटिक्स में। बट नाउ व्हेन दिस एरा ऑफ कोalition स्टार्टेड, द रीजनल पार्टीज स्टार्टेड टू बिकम अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दे स्टार्टेड टू प्ले अ क्रूशियल रोल, है ना, in forming ruling alliances. So this was the gained importance of regional parties. Okay, and now we see alliance politics. 90s में हम देखते हैं कि अलायंस की पॉलिटिक्स भी जो थी वो स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे पार्टीज़ थे जो दलित्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे या बैकवर्ड कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और इस तरह के जो पार्टीज़ थे उन्हीं में मतलब जो पार्टीज़ थे उनमें कुछ ऐसे भी थे जो कि रीजनल एजर्शन कर रहे थे, मतलब वो अपने आप को एक पर्टिकुलर रीजन से ही जोड़ के चल रहे थे। और ऐसे पार्टी जो किसी दलित ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही हैं, बैकवर्ड कास्ट को रिप्रेजेंट कर रही हैं या किसी पर्टिकुलर रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दे ऑल्सो स्टार्टेड टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द नेशनल लेवल गवर्नमेंट, है ना। तो यहाँ पर हमने अभी देखा कि नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट जो थी वो 1989 में फॉर्म होती है, ठीक है। और 1989 में जो नेशनल फ्रंट की जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है, इसके जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो कौन होते हैं? वीपी सिंह। और ये नेशनल फ्रंट अकेला नहीं है, बल्कि अगर नेशनल फ्रंट में देखें तो कौन सी मेन पार्टी है? मेन पार्टी इज जनता दल प्लस
जनता दल एंड अदर रीजनल पार्टीज, ये मिलकर के नेशनल फ्रंट था। बट इसको भी ये नहीं कि पूरा बहुमत मिल गया था, इट वॉज ऑल्सो इन नीड ऑफ सपोर्ट, सो इट वॉज गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम बीजेपी एंड लेफ्टिस्ट। ठीक है, तो इस तरह के जो बीजेपी और लेफ्टिस्ट के सपोर्ट से बनी हुई गवर्नमेंट दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट थे। और अगर आप आगे हम पढ़ेंगे, सब चीज़ों को एक साथ मिला के हम नहीं समझ सकते हैं। अभी आपको ये समझना है कि ये गवर्नमेंट जो थी वो 91 में गिर जाती है, क्योंकि ये माइनॉरिटी में आ जाती है। और माइनॉरिटी में आने के पीछे जो इशू था वो मंडल इशू था, बिकॉज दिस गवर्नमेंट अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ वीपी सिंह it recommended it implemented the recommendations of the Mandal Commission, and according to this recommendation of the Mandal Commission, there should be reservation of seats for the other backward caste, है ना। So this reservation of seats for OBCs was started with this government. Before, earlier there was a reservation of seats only for the scheduled caste and scheduled tribes, but now this government implemented, though it was not implemented instantly because there was so many protests. We will discuss it about it also. तो ये मैटर, इस मैटर पे क्या होता है कि जो बीजेपी जो इसको सपोर्ट कर रही थी उसने सपोर्ट इसे खींच लिया, बिकॉज इट इम्प्लीमेंटेड दिस रिकमेंडेशन ऑफ बीपी मंडल कमीशन, और पूरे देश में बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था। तो बीजेपी ने इस पर अपना समर्थन वापस ले लिया, तो गवर्नमेंट जो थी वो माइनॉरिटी में आ गई और गवर्नमेंट फॉल कर जाती है। देन 91 में इलेक्शन होता है। अब 91 का जो इलेक्शन था इसमें कांग्रेस जो है वो लार्जेस्ट पार्टी बनी। ठीक है, ये हमने 89 को डिस्कस कर लिया। अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट हैपेंड इन द ईयर 1991। ठीक है, सो 1991 में क्या होता है, election of 1991. What was the result? The result was the Congress emerged as the single largest party, though it could not get the majority of the seats, but it was as it emerged as the single largest party. ठीक है, एंड दो इट वॉज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बट इट कुड नॉट विन द मेजोरिटी, सो इट वॉज इन नीड ऑफ सपोर्ट, है ना। तो सपोर्ट इसको मिला और इस सपोर्ट के साथ ही इसने गवर्नमेंट का फॉर्मेशन भी कर लिया 1991 में। एंड एट दैट टाइम दिस प्राइम मिनिस्टर वॉज PV Rao, he was the PM। ठीक है, और अगर हम बाकी के जो डेवलपमेंट्स थे इस समय का वो हम देखते हैं कि 89 में जो नरसिम्हा राव की जो गवर्नमेंट बनती है इसको सपोर्ट मिलता है AIADMK से, और उसके अलावा और भी कुछ पार्टीज थे जिससे उनको सपोर्ट मिला, कुछ सेक्युलर पार्टी। तो इट वॉज सपोर्टेड बाई PM नरसिम्हा राव थे, कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हुई और इट वॉज सपोर्टेड बाय AIADMK। अब ये AIADMK क्या हुआ, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। ठीक है, तो नरसिम्हा राव जो है वो 91 से लेकर के 96 5 ईयर्स इन्होंने कंप्लीट किया था
स्टेबल गवर्नमेंट थी 1991 से 1996 तक इनका रहा। ठीक है, अब 96 में फिर से इलेक्शन होता है और 96 का जो इलेक्शन होता है उसकी जो रिजल्ट होते हैं उसमें हम देखते हैं क्या कि फिर से वही कंडीशन हो जाती है, नो पार्टी वॉज इन अ कंडीशन ऑफ गेटिंग द मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स। ठीक है, किसी को भी मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स नहीं मिलते हैं और तब फिर से एक कोalition गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है और ये जो कोalition गवर्नमेंट है इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज यूनाइटेड फ्रंट। ओके, so this united front government was formed election of 1996. No party got majority and this united front है ना, यूनाइटेड फ्रंट की जो गवर्नमेंट थी वो बन जाती है। और जो अगर हम यूनाइटेड फ्रंट को देखें तो ये भी वही थी जो नेशनल फ्रंट था, है ना, क्योंकि इसमें यूनाइटेड फ्रंट में भी वही थी जनता दल प्लस अदर। ठीक है, तो यूनाइटेड फ्रंट और नेशनल फ्रंट ऑलमोस्ट एक ही हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि इस टाइम क्या था, बीजेपी ने सपोर्ट नहीं किया गवर्नमेंट को। जैसे पिछले बार हमने नेशनल फ्रंट में देखा था ना, बीजेपी और कम्युनिस्ट लेफ्ट फ्रंट वो दोनों साथ में थे। ठीक है, नेशनल फ्रंट के। अब यूनाइटेड फ्रंट को ये भी इसको मेजोरिटी तो मिल नहीं पाई यूनाइटेड फ्रंट को, तो इसको सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है, इट गॉट सपोर्ट फ्रॉम कांग्रेस एंड लेफ्ट। ठीक है, तो ये क्या है, देखो जब 1989 का टाइम था तो 89 में इन ऑर्डर टू कीप कांग्रेस आउट ऑफ पावर, बीजेपी एंड लेफ्ट they shake their hand together, they came together and supported the National Front government. And now in the year 1996 what we find that the BJP actually in this election the BJP emerged as the single largest party because of because of अयोध्या issue। ठीक है, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो इशू था उसकी वजह से 1996 के इलेक्शन में बीजेपी emerged as the single largest party. So now the all other parties were trying just to keep BJP out of power, and in order to keep BJP out of power, Congress and left supported this united front government. Okay, and it shows कि आइडियोलॉजी हैज़ नथिंग टू डू, है ना। एक बार बीजेपी और लेफ्ट साथ देते हैं नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट को ताकि कांग्रेस पावर से दूर रहे, अगली बार कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट इस यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट को साथ देती ताकि बीजेपी पावर से बाहर रहे। सो पावर इज द ओनली कंसर्न, आइडियोलॉजी हैज़ नथिंग टू डू इन पॉलिटिक्स, दो it is shown the covering is of ideology, it is shown that we are doing everything for ideology, but actually nothing is to do with the ideology, everything is focused around the politics or around the power से चाहिए, सबको पावर का लस्ट है ना। सो ये जो यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट बनती है 1996 में वो बहुत ही ज़्यादा दिन नहीं चल पाती है। इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर हम नेशनल फ्रंट यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के पहले चूँकि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी तो उसको भी मौका मिलता है, प्रेसिडेंट ने बीजेपी के लीडर अटल बिहारी वाजपेयी को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए बुलाते हैं 96 में। ठीक है, बट बीजेपी वाज नॉट एबल टू गेन द मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स इन द मतलब सपोर्ट नहीं मिल पाया। और जो अटल बिहारी वाजपेयी के लीडरशिप में बीजेपी की जो गवर्नमेंट बनती है दैट वाज ओनली फॉर 1 month।
मई 1996 से जून 1996 तक बीजेपी की माइनॉरिटी गवर्नमेंट रहती है। उसके बाद जून 1996 में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एच डी देवेगौड़ा को बुलाया, जो कि यूनाइटेड फ्रंट के लीडर थे, ठीक है, गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। और उनको कांग्रेस का सपोर्ट मिल जाता है एच डी देवेगौड़ा को, इसलिए यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है। लेकिन वो जो प्राइम मिनिस्टर थे वो एक ही साल के लिए रहते हैं, ठीक है। Who was the prime minister in this United Front government for first year? H.D. Devegoda. It was from 1996 to 97, and then next became I.K. Gujral. That is from 1997 to 98, ठीक है। 96-97 में वो रहे एच डी देवेगौड़ा रहे, और 97-98 में आई के गुजराल रहे। दोनों यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट थी, बट प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर ये ज़्यादा दिनों तक ये इस तरह की जो काम चलाओ सरकार होती है वो नहीं चल पाती है, और हम क्या देखते हैं कि फिर से 98 में फिर से इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। और 98 का भी इलेक्शन में वही फिर से सेम थिंग वाज रिपीटेड। नो पार्टी वाज इन अ कंडीशन टू गेन मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स। So when this election held in 98, and no party was in a condition to gain the majority of the support of the majority, so what happened that a coalition government was formed by BJP, है ना। बीजेपी ने एक कोalition गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया फ्रॉम मई 1998 टू जून 1999, ठीक है। मई 1998 से जून 1999 के बीच में ये गवर्नमेंट फॉर्म करती है बीजेपी with the support of other parties. It was not in a condition of this कि अपने दम पे वो गवर्नमेंट फॉर्म करे, ऐसा बात नहीं था। तो इसी समय इनका जो एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है वो इसी समय इस्टेब्लिश हो जाती है। तो ये हमारा 96 का हमने देख लिया, ठीक है। '96 में जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई वो 98 तक रहती है। 98 में फिर से इलेक्शन होता है, और जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं मिलता है तो उसको हम हंग पार्लियामेंट कहते हैं, ये हंग पार्लियामेंट। तो ऐसा ही हंग पार्लियामेंट 98 में भी बनता है, और बीजेपी जो है वो बीजेपी फॉर्म्ड government with support from other parties. और इसी समय बीजेपी ने एनडीए का भी फॉर्मेशन कर लिया। ये जो सपोर्ट अदर पार्टी से मिल रहा है, ये इन्होंने एक अलायंस बना लिया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का जो रूल है वो 1998 से अक्टूबर 1999 तक चलता है, ठीक है। मार्च 1998 से अक्टूबर 1999, ठीक है। तो ये एनडीए 1 की गवर्नमेंट है जो कि मार्च 1998 से अक्टूबर 1999 के बीच में रहती है। लेकिन फिर से क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो माइनॉरिटी में आ जाती है, और फिर से इलेक्शन होता है। और इलेक्शन का जो नतीजा इस बार आता है वो ये होता है कि जो एनडीए थी, एनडीए को मेजॉरिटी मिल जाती है, एनडीए जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म कर लेता है, ठीक है। और ये जो एनडीए का गवर्नमेंट फॉर्मेशन होता है 1991 में, ठीक है, 1999 में। 1999
NDA formed the government. And who was the PM? PM was Atal Bihari Vajpayee. ओके, तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो बन जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, और इस तरह से NDA की गवर्नमेंट फॉर्म होती है। ये 5 साल पूरे करती है गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट 1999 से 2004 तक चलती है, ठीक है। और इसके बाद हम क्या देखते हैं कि 2004 में फिर से इलेक्शन होता है, और इस इलेक्शन के दौरान ही एक और नया अलायंस बन जाता है। जैसे एक NDA तो बना ही हुआ जिसमें मेन लीडर बीजेपी, मेन पार्टी बीजेपी थी। इसी तरह से जब 2004 में इलेक्शन होता है तो एक नया अलायंस जो है वो फॉर्म हुआ रहता है, और दैट इज UPA, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है। सो इलेक्शन ऑफ 2004, इसमें UPA जो है, जिसका मेन लीडर, मेन पार्टी कौन है? कांग्रेस। तो UPA जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती है इस समय, और ये 2004 से 2009 तक रूल में रहती है। UPA का फुल फॉर्म आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बन जाता है, ठीक है। और इसके बाद जिसमें PM कौन होते हैं? PM वाज मिस्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। और फिर जब 2009 में इलेक्शन होता है तो फिर से UPA जो है वो फिर से पावर में आ जाती है, मेजोरिटी मिल जाती है UPA को, और 2009 से लेकर के 2014 तक ये फिर से पूरा टर्म अपना कंप्लीट करती है, और प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर फिर से मनमोहन सिंह ही बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये 2014 तक हमने देख लिया। यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी है कि UPA की जो गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है, इट इज़ नॉट अ पार्टी, इट इज़ एन अलायंस, है ना। अलायंस मतलब कि कई सारे पार्टीज मिल करके इसको बनाए हैं। तो अगर हम कह रहे हैं कि किसी भी एक पार्टी को नहीं मिला था इस समय तक मेजॉरिटी, तो ये इसलिए कहा जा रहा है। अगर मेजॉरिटी है भी, अगर गवर्नमेंट फॉर्म हो भी रही, तो अलायंस है जो कि गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब हम नेक्स्ट अगर देखें 2014 के बाद जो इलेक्शन, 2014 में जो इलेक्शन होता है उसमें क्या होता है कि पहली बार 89 के बाद एक सिंगल पार्टी जो है वो मेजॉरिटी उसको मिलती है, ठीक है। 2014 बीजेपी है ना। हालांकि गवर्नमेंट जो थी वो NDA की ही थी। इस समय जो गवर्नमेंट बनी उसको हम कहते हैं NDA 3, है ना। इट वाज NDA 3, लेकिन बीजेपी को मेजॉरिटी थी। बीजेपी अकेले भी चाहती तो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर सकती थी, ठीक है। अब ये NDA का भी फुल फॉर्म आपको याद रखना है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और who was the prime minister? The prime minister was नरेंद्र मोदी, मिस्टर। और 2014 के बाद ये अपना 5 साल पूरा करती है 2019, और 2019 में फिर से जब इलेक्शन होता है तो फिर से NDA की ही गवर्नमेंट बनती है। इस बार बीजेपी का सीट और भी बढ़ जाता है, 303 पे पहुंच जाती है, और इसको हम फिर से PM जो है वो नरेंद्र मोदी ही बन जाते हैं। और इसीलिए यहाँ पर एक नए टर्म का यूज़ हुआ है, दैट इज़ BJP सिस्टम, ठीक है। जैसे हमने देखा ना कि कांग्रेस सिस्टम की बात हो रही थी पहले 3 इलेक्शन में। अगर देखा जाए तो 89 तक का समय जो था वो कांग्रेस सिस्टम प्रिवेल कर रहा था। हाँ, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रह गया था, बट स्टिल कांग्रेस सिस्टम वॉज देयर टिल
89। और 89 से लेकर के अगर हम 2019 तक का टाइम देखें तो कोई भी पार्टी जो है वो इस कंडीशन में नहीं पहुंची थी। लेकिन 2019 के जो इलेक्शन के रिजल्ट है उससे हम कह सकते हैं, सोशल साइंटिस्ट दे हैव स्टार्टेड टू से दैट नाउ देयर इज बीजेपी सिस्टम। जहाँ पर हमने कांग्रेस सिस्टम को देखा था, पढ़ा था, कांग्रेस सिस्टम यानी कि कांग्रेस वाज नॉट अ पार्टी because it was playing the role of both the opposition party as well as the ruling party. The similar condition is now with the BJP. BJP is not only the ruling party, it is also playing the role of the opposition party because of the poor strength of the opposition party. We don't have any official opposition party because at least 10% of the seats is important, is compulsory for being an opposition party, है ना? That is not there. तो दिस इज़ द बीजेपी सिस्टम, जहाँ पर कि बीजेपी के नंबर ऑफ सीट्स इतने बढ़ गए हैं कि हम ये कहना स्टार्ट हो गया है कि आज का समय जो है वो बीजेपी सिस्टम का टाइम है। तो ये हमने यहाँ तक इन चीज़ों को कर लिया। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ किस तरह से बैकवर्ड क्लास जो है उनका राइज होता है। मंडल कमीशन के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है, उसके क्या पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस होते हैं, और फिर कम्युनलिज्म सेक्युलरिज्म की जो बात होती है वो हम डिस्कस करेंगे। ये दो अभी बहुत ही मेन इश्यूज जो हैं वो हमारे बचे हुए हैं, और इसी में हालांकि इससे तो ये चीज़ें अब निकल गई हैं, आपके सिलेबस काफ़ी कम हो गए हैं। तो ये दो टॉपिक्स करने के बाद हम लोग कंसेंसस के जो टॉपिक्स है उसको देखेंगे। ओके, so this is all for today. We will continue with this topic in the next class.